हम आए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बांदा सिंधी CURAG में, जो यहाँ था आज साइंस एग्जीबिशन, जिसका किशनगढ़ से सिर्फ इमानुएल पब्लिक स्कूल को यहाँ से बुलाया गया, जिसके 3 मॉडल सेलेक्ट हुए हैं। और ये बच्चे हैं जिन्होंने मॉडल्स बनाए थे, जिनके मॉडल सेलेक्टेड हुए हैं। कल फाइनल होगा, जिसका भी बेस्ट होगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, विनर अवार्ड मिलेगा। बट वो अलग बात है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हमें यहाँ बुलाया और हमारे मॉडल्स भी सेलेक्ट हुए। तो ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ये आए हैं और कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ है इनका, और हमें बुलाया अपने प्रोजेक्ट के बारे में। एक ये इसका भी हुआ है एंटी स्लिप अलार्म सिस्टम। इसका जो प्रोजेक्ट था वो यूनिक था, अच्छा था, तो बहुत अच्छा रहा उसके लिए भी, और सबको बहुत पसंद आया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर की एक 9th लेवल के बच्चे ने अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, और इनकी भी टीम वर्क है। इन्होंने क्या बनाया? डूबती दुनिया स्वार्थी मनुष्य, तो पूरा अर्थ का प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर अंटार्कटिका से लेकर डेजर्ट, हिल एरिया, रोड, कॉलोनीज, एवरीथिंग कवर किया, जिसके अंदर बहुत बड़ा था। और ये एक छोटा सा बच्चा हमारा 5th क्लास का, इसका भी सेलेक्ट हुआ है प्रोजेक्ट, जो था किस पे बेस्ड था? स्टेट्स एंड इंडिया, स्टेट्स एंड कैपिटल्स पे, कि आप किसी स्टेट पे आप लगाओगे तो उसका कैपिटल होगा तो ब्लिंक करेगी। वो आपको पूरी वीडियो में दिखेगी। कल फाइनल है नेशनल साइंस डे का, हम वापस आएंगे कल। और हाँ, इन सबका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ है। विनर हो या नहीं उससे मतलब नहीं है फिलहाल हमें, इनका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है वो सबसे बेस्ट चीज़ है। थैंक यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। A very good morning, all of you. My name is Neelam Kavar. My name is Nanagar. We are the student of class 11 of Kendriya Vidyalaya Sivaraj Bandasindri. We are here with a project of traffic signal optimization from the lens of mathematics. See, we believe that in this world there's one God and one devil. But for the growth of Indian economy, there's one more rising devil, and that is the traffic congestion, which is happening and rising immensely in a lot of cities. So what we will do? We will firstly install an algorithm in the traffic signal. That algorithm will do all the calculations, and on the basis of the calculation, the algorithm will decide like which lane should move first. Let me explain you with the help of the file. In this file, firstly, what are the concepts we are using? We are using probability, permutations, and expected waiting time. Firstly, we will find the probability of each road. Like road A has 30 vehicles, road B has 20 vehicles, road C 40, and road D 10. So we will find the probability of each road, and then we will calculate expected waiting time. We will find which road have to wait for how much time. Now, if I have to make green one road, which one should be green first? This will not be assumed. This will be calculated. How? We will use different permutation orders to calculate this. For example, I have made 3 permutation order, and the one permutation order that will consume the less amount of time will be used and implemented by the algorithm in the traffic signal. And by this way, we will reduce congestion, and yes, we will also grow our Indian economy, because in future generation, India is growing. People's living standards are growing. Everyone almost is buying a car. So what we need to make sure that our traffic system does not become a stoppage in our country system. Instead, it becomes a help and a support in our country system. And for that, this is a project. Thank you so much. तो आपको ये आइडिया कहाँ से मिला? Um, Actually, I'm very interested in studying about what is happening in India. So I realized that traffic is a big problem. So I decided I will work on this thing. I have decided the niche. Then I thought of something like how signal orders work. So I asked my mathematics sir and I asked him for some suggestions, and then I thought, okay, we can use this concept. We discussed, and then I came for this idea and improved this like day by day and this. Thank you, sir. Thank Good morning, sir. Myself, Manchori. I am from KVS Bandasindri. I am reading class 8. I am here for present my project. My project is red trap bond. Here we arrange bricks in red trap position where a cavity
which filled by air. Air work like insulator of heat, by which the heat inside the house do not escape out. In winter, the in winter the house become warm, and in summer house become cold. It is it reduce ये हमारी लागत को कम कर देता है 30 से 40% तक, और इसमें ब्रिक भी कम लगती है और मजबूती ज्यादा रहती है। एक्सपर्ट लेबर चाहिए इसके ये चाइना में पहले सबसे पहले हुई थी, और इसे चाइनीज बॉन्ड भी कहा जाता है रेड ट्रैप बॉन्ड के अलावा, और ये अभी है ना इंडिया के अंदर केरला और साउथ साइड में ज्यादा यूज होती है। And this is my team, Manoj, Arpita, and one more person is there, Mahar. We are from CURAJ, MSc in Environmental Science Department. So we are presenting working model of remote sensing, basic stages of remote sensing. So in this, there is a sun which the solar radiation are emitted. Solar radiation comes transmitted on the Earth land features, and that interaction on land features reflects back on the satellite, and then satellites have sensors with they record, and then they analyze the data, and on the basis of that we can recognize which land feature is there, where buildings are there, where water is there, where vegetation is there. Then that data is recorded and transmitted on Earth, which is at working station, where there is big data analysis is done. On the basis of the spectral reflectance curve, and images are generated. The image this is a basic principle on which this remote sensing work, electromagnetic spectrum. In this wavelengths are in this range, the wavelengths are captured. Every land features have different wavelengths. They emit different types of wavelengths, and that is shown in this curve. In the visible region, in near infrared red region, you can see the peak, which shows that there is a healthy vegetation is there. And here you can see the low reflectance. This is the water reflecting, because water absorbs all wavelengths, and the reflectance is very low. So on the basis of that, images is generated, which in image you can see the darker tone is a water area, and the lighter tones are the buildings or forest. And on the basis of this, we can analyze that city land use changes, and we can also map NDVI mapping. So this is our series. Thank you. Sayyid Ahmed Ali. I am student of class 5th. Today my topic is carbon purified to reduce harmful carbon emissions and pollution from factory chimneys before they enter the atmosphere. The project uses absorption and filtration to trap pollutants. इस कार्बन वाली एयर को हम फिल्टर करेंगे. ये कार्बन एयर फिल्टर हो रही है. ये फ्रेश एयर निकल रही है, फ्रेश एयर में कन्वर्ट कर देती कार्बन को. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. Good morning everyone. My name is Antima Chaudhary. I read in class 6. My project name is Aravali. हमने अरावली को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया है. एक है अरावली ऑफ कंजर्वेशन और एक है अरावली ऑफ लॉस. The Aravali conservation is undergoing a critical transformation due to be late 2025. The Supreme Court of the India and the Ministry are implement of the environment are comparison conservations plan to Aravali range. Protect the Aravali, protect our future. Save Aravali, the green lungs of North India. Always hears new it treats it's time to act. The Aravali of Flows. The Aravali of Flows, one of the oldest mountain system running through Delhi, Rajasthan, Haryana, Gujarat. Our observations reflects loss due to illegal meanings. The illegal reflects legal observations. थैंक यू वेरी मच. ये आपने बहुत अच्छा एक करंट जो सिचुएशन का उठाया है आपने, जो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के लिए बोला था. अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एक्चुअली वो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? Correct. स्टेटमेंट क्या है अरावली के?
अरावली को बचाना चाहिए और पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बारिश भी होगी, बारिश नहीं होगी तो दिल्ली से लेकर हरियाणा और राजस्थान से होते हुए गुजरात तक फैल जाएगा रेगिस्तान। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है आपका। ये हमें नाश्ता भी मिला है यहाँ पर, वो भी कर रहे हैं। मेरे को नहीं मिला या फिर मेरे को नहीं मिला, इसको नाश्ता नहीं मिला, इसको हम एक्स्ट्रा लेके आए हैं। नाश्ते में क्या क्या बता? कचौरी है, ये कोई कल परसों की पुरानी कचौरी है, माजा है। अरे वाह, अच्छा नाश्ता है। स्टूडेंट्स का पूरा अच्छे से ध्यान रखा गया है यहाँ पर। इन मैम ने भी नाश्ता कर लिया? मैडम आपने नाश्ता कर लिया? आपने, तुम लोगों ने करा, कर लिया? एक्चुअली ये जो मॉडल है वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर है। तो हमारे पास जो आजकल जो हमारे पास कर रहे हैं, जो अपना इनोवेशन करना तो मोटिव है इसलिए, पर जो पुराने जो इनोवेशन हो रखे हैं तो रिसाइकल, रीयूज, रिप्रोड्यूस का भी हमारे पास जो मोटिव होना चाहिए, तो ये उसके अंदर आता है एग्जिस्टिंग के अंदर। जैसे ये लाइट है, सोलर पैनल से कनेक्टेड है, जैसे पहले ये बैटरी से कनेक्टेड थे, बट इसके अंदर क्या हुआ कि बैटरी हमने इसके अंदर चेंज करके सोलर पैनल से कनेक्ट किया ताकि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हमारे पास ये चीज और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काउंट होने लग जाए। जैसे आजकल क्या करती है कि अपने जो गवर्नमेंट्स रहती है, कोई कुछ भी रहता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन रहती है, तो नई लाइट्स लाके चेंज करती है, बल्कि अपने को उसके सोलर पैनल उसका अटैच कर सकते हैं, बैटरी हटा सकते हैं, तो ये उसके अंदर वर्किंग कंडीशन के अंदर आ जाती है। ये है पावर बैंक है, ये होममेड पावर बैंक है। इसको तो अपन देख सकते हैं, होममेड पावर बैंक है। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स यूज है पुराने पावर बैंक के यूज हुए हैं, और इसमें जो चार्जेबल जो सेल्स रहते हैं या बैटरीज रहती है जिसमें चार्ज करते हैं अपन, उसको फोल्ड करा है। तो उसके अंदर ऐसा है कि जैसे ये वर्किंग कंडीशंस के अंदर है। वर्किंग कंडीशंस के अंदर है, ये पूरा होममेड है, तो ये वर्किंग कंडीशंस के अंदर है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट मॉडल है वो ये है। तो इसका जो क्या है कि ये प्रोटोटाइप मॉडल है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा जैसे पहले बल्ब्स थे तो अब एलईडीज आई है, तो उसके बाद हम चाह रहे हैं कि कोई नई एलईडीज आए। तो ये प्रोटोटाइप मॉडल है, इसका मतलब अभी आने वाले मॉडल्स और बाकी है। थैंक यू। Myself Amar Mehdi, I am from BTech department EC and I am from UP Lucknow. I am currently pursuing my BTech degree from Central University Rajasthan. And hello sir, I am Yashna Singh and I am in BTech first year EC and pursuing my day degree from Central University of Rajasthan, and I am from Vrindavan UP. And this is our model, basically a prototype of a drone who basically concern on the women's safety. Which basically runs and tells the safeguard the darkened area. Like the Delhi has many cases of women assaults, and we know so we can use this drone for the sensor remoting and tackle that whole scenario. We also code an script which is basically on the Python, which use a OpenCV library, which tells us about the image detection, which detect the image and also sir, the image has an eye. The drone has an eye with the help of OpenCV. It can detect the circles and it can automatically land itself. Next, it will, if the drone moves or it will huddle aim like a wind aim, so the drone will toggle. After the toggling, it will the image will rotate, but the drone automatically process it and send a clear image, and the angle will be declined. So it will give a proper image. So we can see the proper image. Next, if a no-fly zone area will come, it automatically detect that the no-fly area zone, and it will come back. It will not go that no-fly zone area. And in the night visions, it will use brighter colors for the visible of anything, because we are concerning about the night dark areas. So we use the infrared sensors, and the camera is high tech, which will detect all these things. And if the drone moves, the image will be blurry. It's also make the higher resolutions and provide a brighter image. This is our code. We will integrate with our
model with a physical model. Models we use a part and other. और हमने इसमें बहुत सारे पार्ट्स यूज करके, जैसे कि पहला वाला पार्ट है ये एफसी है। मेनली ये ड्रोन का ब्रेन होता है, जिसके अंदर हम अपनी जितनी भी कोडिंग है वो सब हम फिट होगी इसके अंदर। और ये जो पार्ट है ये मोटर्स है जो रोटेट होगा और इसको एक थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। और ये जो नीचे का मॉडल है ये स्पाइडर आर्म है, बेसिकली इसने इसको सपोर्ट दिया हुआ है और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आ जाएंगे, जैसे कि ESC जो सिग्नल्स वगैरह भेजेगा। और ये जो कैमरा है ये बेसिकली हाईटेक कैमरा है और इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रखी है, जैसे कि ये जो प्लेट है ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट है, बेसिकली ये इसको सारी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। और हमारा जो बेसिकली इस मॉडल का कंसर्न है वो वुमेन सेफ्टी के ऊपर है। बेसिकली जो कोई भी एरिया होते हैं जैसे कि डार्कन एरिया, तो वहाँ पे पुलिस का रीच बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा आउट स्टेशन भी होते हैं। तो उस जगह मेनली हमारे ड्रोन रहेगा जो एक अलार्म सिस्टम भेजेगा। अगर कोई इंसान किसी का पीछा कर रहा है तो उसकी चेंज इन स्पीड की वजह से ये उसको रिकॉग्नाइज कर देगा और पुलिस को एक सिग्नल भेजेगा, जिसकी वजह से ऑन टाइम पुलिस आ सकती है या फिर ये एक अलार्म जनरेट करेगा। हाँ, ये बेसिकली नाइट के लिए है। No, 24 hours, not in the night. The patrolling team is moving. That patrolling team cannot see all the things around us. तो ये क्या करेगा, बस पेट्रोलिंग टीम के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए चलेगा और आसपास की चीजों को देखेगा, क्योंकि पेट्रोलिंग टीम को भी पता है कि कहाँ कहाँ हमें पेट्रोल करना है, कहाँ पे नीड ज्यादा है। तो ये ह्यूमन के ब्रेन से ही चलेगा, बट लेकिन जैसे ह्यूमन सब कुछ चीज नहीं देख सकता, बट ये सारी चीजें देख पाएगा वाइडर रेंज में, जिससे हम काफी हद तक, मैं तो ये नहीं बोल सकता कि 100% क्योर कर सकते हैं, बट काफी हद तक चीजों को एलिमिनेट किया जा सकता है, कम सेफ्टी कंसर्न्स को एलिमिनेट मतलब इससे क्योर किया जा सकता है फॉर वर्स्ट सिनेरियोज में। ठीक है, हाँ, कैमराज आर हाईटेक कैमराज, इंफ्रारेड कैमराज, दिस मेक्स अस थर्मल इमेज आल्सो फॉर द पर्पस। My name is Mansi Rathod. Good morning. My name is Mansi Rathod. My name is Tanushi Naruka. My name is Purvi Singhvi. Emmanuel Public School, किशनगढ़। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है कॉलोनीज। कॉलोनीज में एक जो लोग रहते हैं वो भी कचरे की गाड़ी आती है जिसके अंदर ये कॉलोनीज है। हमने एक नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वच्छ भारत अभियान बनाया था जिसके अंदर एक कचरे की गाड़ी आती है और कचरा घर से लेकर के जाती है। वो कचरा जो डंप वेस्ट होता है वो जाकर के एक एग्रीकल्चरल लैंड जिसे हम लोग खेती के अंदर यूज कर सकते हैं उसे जाकर के उस खेत के अंदर डाल देती है, जिससे कि जो जानवर होते हैं वो उसे खाते हैं और मर जाते हैं। उसके बाद में जो कचरा अगर कई दिनों तक इकट्ठा रहा एक ही जगह पर तो उससे हार्मफुल गैसेस लीक होंगी, जिससे कि इंसान को कोई भी डिजीज हो सकती है। उसके बाद में यहाँ पर है प्लॉट। ये प्लॉट अगर किसान को पैसों के लालच में आकर के किसान ये प्लॉट के ऊपर हाउसेज वगैरह बनाता है, जिसके खेत के ऊपर हाउसेज वगैरह बनाता है, ब्लॉक्स। उसके बाद में ये जिससे कि है ना ब्लॉक्स बिल्डिंग ज्यादा बनेगी, तो उसके बाद में तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फूड है, जो एग्रीकल्चरल लैंड जिसमें यूज होता है उससे फूड की कमी आ जाएगी। एग्रीकल्चरल लैंड रही रहेगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो फूड की कमी हो जाएगी और उससे जो है फूड के प्राइस बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है ये फैक्ट्रीज का कचरा जो होता है, इसका केमिकल पॉल्यूशन होता है, वो जाता है पॉन्ड्स के अंदर। तो यहाँ पे पॉन्ड है, पॉन्ड का हम पानी हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डेली बेसिस के यूजेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम वो कर नहीं पाते। हम उसे एग्रीकल्चर में भी यूज कर पाते हैं लेकिन सिर्फ 2 से 3 बार ही कर पाएंगे, उसके बाद हम नहीं कर सकते क्योंकि जो जमीन है वो बंजर हो जाएगी, क्योंकि जो हार्मफुल केमिकल्स है वो जो है इस पानी में मिक्स हो जाता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इसके अंदर जो है ट्रीटमेंट के प्लांट बनाने चाहिए। और ये जो फैक्ट्रीज का पॉल्यूशन है, ये केमिकल यहाँ से जाता है, रिवर्स में जाता है, रिवर्स से जाता है सी के अंदर, ओशियंस के अंदर, जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वो वाइल्ड लाइफ भी खत्म होती है और एनिमल्स मरते हैं, और इससे जो है एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाती है और कई सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। उसके बाद माइनिंग, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, इन फॉरेस्ट को हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं फॉरेस्ट के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फर्स्ट इसके पीछे के जो डेजर्ट्स है
इसके पीछे के जो डेजर्ट है, फॉर एग्जांपल अरावली पहाड़, अरावली हिल्स, अगर इसके ये पहाड़ ही नहीं रहेंगे तो वो डेजर्ट धीरे धीरे आगे आ जाएंगे और आगे जो कॉलोनीज है, जो शहर है, जो सिटीज है, वो लिवेबल नहीं रहेगी, हैबिटेटेड नहीं रहेगी इंसान के लिए, जिसकी वजह से जो इंसान वहां से मूव ऑन करना पड़ेगा और वहां नहीं रह पाएगा। सेकंड है कि जो माइनिंग होती है उससे जो वाटर पॉल्यूट होता है, जो रिवर पॉल्यूट होती है, जो माउंटेन से निकलती है, वो भी सी में जाती है, जिससे भी एक्वेटिक लाइफ जो है वो डैमेज हो सकती है। और फर्स्ट ये है रेन पे भी अफेक्ट करता है, क्योंकि जो रेन होती है, जैसे बारिश वाले बादल होते हैं, वो फंस जाते हैं, वो बड़े बड़े पहाड़ों से टकराते हैं तभी बारिश होती है। अगर पहाड़ ही नहीं रहेंगे तो फिर वो जो बादल है वो आगे चले जाएंगे, जिसकी वजह से बारिश हो ही नहीं पाएगा और जो एरिया है वो डेजर्टेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को हम जब काटते हैं तो उसने हमें यहाँ पे बना रखा है, हम अलग अलग चीजें बनाते हैं। कोई कुछ लोग नई सिविलाइजेशन वहाँ पे अर्बनाइजेशन करते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं वहाँ पे, और हमने यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे है हाईवेज बनाए हैं फॉरेस्ट काट के। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम फॉरेस्ट काटेंगे और अगर हम पेड़ काटते रहेंगे तो फर्स्ट वाइल्ड लाइफ खत्म होगी, ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन की मात्रा डिक्रीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। और वाइल्ड लाइफ, अगर कुछ जानवर जिनका नेचुरल हैबिटेट खत्म होता है, वो धीरे धीरे करके कॉलोनीज में आएंगे अपने खाने की तलाश में, भूख की वजह से, और उससे हमें भी तकलीफ हो सकती है। और अगर हम पेड़ काटते रहेंगे तो उससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो अंटार्कटिका की आइस है वो भी मेल्ट होगी। अंटार्कटिका की अगर आइस मेल्ट होगी तो जो प्योरेस्ट वाटर है अंटार्कटिका में, वो जाकर होगा सी में मिक्स होगा, जिससे सी लेवल है वो बढ़ेगा, जिससे जो लो कोस्टल एरियाज होते हैं, लो कोस्टल आइलैंड्स होते हैं, वो डूब जाएंगे। और हमें इसके लिए जो है हमें ये यूज करना चाहिए, हमें ट्रीटमेंट्स लगाने चाहिए, हमें जैसे डंपिंग यार्ड है, डंपिंग वेस्ट वाली जगह है, वहाँ पर हमें रिसाइकिल के लिए चीजें लगानी चाहिए। So this is the model which is known as iron thruster. It is a conceptual representation of the actual model that is being used in deep space exploration. Essentially, it does what? It saves our fuel consumption, and this model is especially used as an electric propulsion system so that we can use electrical energy to build up or to reduce the amount of fuel consumption. Now, how does this system work? Actually, this system works on the principle of leakage of charge. Here we have got two plates. One plate is made up of sharp tooth, and the another plate is kept at low potential. Now this is the battery, sir. This battery is having 3.7 volt, and this is the transformer that steps up the voltage to 400 kilovolt. Now gradually, as we switch, I'll show it. Now as we gradually switch it on, the high potential end starts to leak charges, and due to which we see of the air that is inside, that is within this region, it gets ionized. The positively charged gets attracted towards them, and the negatively charged particles splits up into this end, thus creating a thrust. And actually this system is used to provide the thrust to the rocket in deep space. And the efficiency of this engine is to the extent that it gives 40 kilometers per second to the system. But not just immediately, it gives it gradually. It gives it gradually. Now the system arises, the main problem is that here we are just giving battery as a source. But in deep space, we will not, sometimes there is a problem that the battery gets discharged. So we use either nuclear electric or the solar parallel devices. Recently, NASA Space One exploration has used the solar panel device to create that amount of energy, to create that amount of potential difference that is required to make the flow. So if you want a better view, then you have to come to this dark room. वीडियो है उसकी
See, sir, this is the thrust. This is the thrust. You can see the air moving back. Yes. Now, Off and side. Roll. There is a switch it up, switch it up, switch it up. Now, sir, just come inside this room and you will get a better view. मैं लेके जा रहा हूँ, मैं लेके Sir, can you see the purple light? Yes. This is the ions that is getting discharged, and it is providing the thrust that is necessary for this system to flow. Sir, my name is Harshi. I study in class 7th. Sir, this is human heart. It work like karna. Sir, this is oxygenated and this is deoxygenated. It has 4 chambers. It has 4 valves: mitral valve, pulmonary valve, tricuspid valve, and aorta valve. And if we beat continuously to transport blood, the heart is a muscular and vital organ. It pumps to all part of your body. It is about the size of a fist. It is divided into 4 chambers. It is located in the chest cavity. It beats continuously to transfer to blood, and the heart weight between 200 to 425 grams. An adult 72 times per minute heartbeat. दिल का जरूरी काम है खून को आगे बढ़ाना। इंसान के दिल में 4 अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। तो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स को कहते हैं लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। नीचे दिए गए 2 चैम्बर्स को कहते हैं लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। The human heart is a vital muscular organ that pump blood through the body. It roughs the size of the first separated holes of blood flow in left direction to right direction. The circulatory motion is the formation of the blood. दिल के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। एक होता है लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, और एक होता है लेफ्ट वर्टिकल एंड राइट वर्टिकल। ये रेड ब्लड है, इसके अंदर ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन है, इसके कारण ये रेड हुआ है। और ये ब्लू इसलिए है क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन है लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, इसलिए ये ब्लू हो रखा है। बस। इसमें 4 चैम्बर कौन से हैं इस हार्ट में? 1 2 3 4। ओके। और ये ब्लू कलर में जो है वो कौन से हैं? वर्टिकल है। प्योर ब्लड वाले कौन से हैं? प्योर ही है। ये प्योर ब्लड है, रेड में है जो। और ब्लू वाले इम्प्योर ब्लड? ये प्योर है। अच्छा, ओके। कौन सी स्कूल है आपकी? सुमंगलम द स्कूल। सुमंगलम द स्कूल। ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।